Assalamu alaikum students. The topic which we discuss today is transfer of thermal energy. In this topic we will discuss the modes of transfer of thermal energy. कि थर्मल एनर्जी किन किन तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है, तो आज हम इस टॉपिक में ये बातें कह लेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या तरीके हैं थर्मल एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर करवाने के लिए. Now first we discuss the topic heat transfer. So students, remember the point that the transfer of thermal energy is only takes place when there is a temperature difference between two bodies. Suppose a one body is at higher temperature and the second body is at lower temperature. Then there is some temperature difference created between two bodies or established between two bodies. Then at that moment the transfer of thermal energy takes place. So the thermal energy is transferred only when there is a temperature difference between two bodies. That's why we say that the heat or thermal energy always travel from hotter body to the colder body, because there is a temperature difference established between hotter body or colder body. Now, suppose the two bodies are at the same temperature. It means that the amount of heat loss from one body is equal to the amount of heat gain from the other body. Or in other words, we can say that the two bodies are at thermal equilibrium, or there is some kind of thermal equilibrium established between the two bodies. So there is no net transfer of thermal energy between the two bodies because the two bodies are at the same temperature, and the amount of heat transfer from between two bodies, amount of heat transfer between two bodies, or the amount of heat loss from one body or the amount of heat gain from other body becomes equal to each other. So there is no net transfer of thermal energy when the two bodies are at the same temperature. There are three processes by which thermal energy transferred from hotter body to the colder body or from higher temperature to the lower temperature. These three modes are conduction, convection, and radiation. Now, first we discuss about conduction. So students, the first question which came in our mind is that what is conduction or how conduction takes place. So the conduction is the mode of transfer of thermal energy in which actual movement of material particle is not involved. That's why we can say that conduction takes place, or solids, or the transfer of thermal energy in solids takes place by conduction, because solids is of two types, metals and non-metals. And in conduction there is no actual movement of the material particle, and in solids the particles are closely packed with one another by strong forces of attraction. That's why there is no actual motion of the particle is involved in case of solids. And we can say that the solids, that the thermal energy, transfer of thermal energy in solids is because of conduction, because in conduction the actual motion of the medium particle is not involved. And the solids are of two types. First, metals are the good conductors of heat, and non-metals such as wood or glass are the poor conductors of heat or an insulator. Now there are two conditions for the conduction. The first is the two bodies must be in direct physical contact with one another. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू हैव अ मेटल रॉड एंड यू जस्ट प्लेस वन एंड ऑफ द मेटल रॉड ऑन अ कैंडल फ्लेम. Then the candle is a source of heat and the metal rod is a body. So candle flame and metal rod and the end of the metal rod both are in physical contact with one another. So when there is transfer of thermal energy by conduction, then the first condition for conduction is the direct contact between the two objects. The second is the two objects must be at different temperatures, or there should be a temperature difference between the two objects. Then the transfer of thermal energy takes place. One object is at higher temperature and the second object should be at lower temperature. Then there is a temperature difference established between the two bodies and the transfer of thermal energy takes place. Now we discuss mechanism of conduction. Now, solids are of two types, metals and non-metals. So first we discuss how thermal energy travel from both metals and non-metals. So students, in metals or non-metals, particles are tightly packed with one another and the particles are just vibrating at their mean position.
So we can say that there is some kind of molecular vibrations involved in case of metals and non-metals. And when you put one end of the solid on a candle flame, then the molecules at this end starts to gain thermal energy from the flame and become hotter. And when they become hotter, they get energized and they start vibrating, and they start their vibration vigorously or violently. And during their violent or vigorous vibration, they make collision with the colder neighboring particle and transfer a part of their thermal energy to the colder neighboring particle, and the neighboring particle, after getting thermal energy, gets energized and starts vibrating vigorously, and then make collision with his next neighboring colder particle. And this process continues till the heat is transferred from one end to the other end, or from hotter end to the colder end. तो ये process continue रहेगा, और ये प्रोसेस उस वक्त स्टॉप होगा जब आपकी पूरी की पूरी मेटल रॉड जो है वो हॉट हो जाएगी. सो होता क्या है, जब आपने एक एंड को प्लेस किया कैंडल पे, कैंडल के फ्लेम पे, तो वो एंड के पार्टिकल्स एनर्जाइज होते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली एंड मेक कोलिजन विद द कोल्डर नेबरिंग पार्टिकल, and the colder neighboring particle becomes hot and start vibrating vigorously, and then make collision with the next neighboring particle, and this collision and transfer of thermal energy takes place till the heat is transferred or completely travel from hotter region to the colder region. जब तक heat hotter region से colder region तक travel नहीं कर जाएगी, उस वक्त तक ये process continue रहेगा. And when the metal rod becomes hotter, or the metal rod comes at uniform or constant temperature, then this process will stop. तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा जब अंदर मौजूद सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो गए और थर्मल एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक प्रॉपर ट्रांसफर हो गई. इसका मतलब अब मेटल रॉड जो है वो कह लें कि मेटल रॉड में कोई कोल्डर रीजन नहीं है, मेटल रॉड बिकम्स हॉट एंड द प्रोसेस स्टॉप्स. तो प्रोसेस क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा. अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो होती है ना, इसकी वजह से जो ट्रांसफर होता है थर्मल एनर्जी का, by making collision with the neighboring particle, and this collision continues till the heat is transferred from hotter region to the colder region. So this process is a slower process. ये जो process है molecular vibrations के जरिए thermal energy का transfer होना, this process is a slow process because molecular vibrations make collision with because of molecular vibration the particles make collision with their neighboring particles. So this process is a slower process, and this process takes place in both metals and non-metals. But student, there are some free electrons. There is a large amount of free electrons present in metals. So in metals, there are the two ways of transfer of thermal energy. First is the molecular vibration, and second is the traveling of free electrons from hotter region to the colder region. यही वजह है कि नॉन मेटल और मेटल को अगर हम कंपेयर करें कि कौन ज्यादा अच्छी तरह हीट को कंडक्ट करता है, सो हम कहते हैं कि मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, of thermal energy. The reason is that in metals, the transfer of thermal energy takes place by two ways. First is the molecular vibration, and second is the motion of the free electrons. So होता क्या है कि जब आप मेटल के एक एंड को फ्लेम पे रख के हीट कर रहे हैं, तो उस एंड में आपके पास मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं और आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं. सो होता क्या है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मॉलिक्यूल्स गेट्स एनर्जाइज्ड, and the molecules start their vibration vigorously and make collision with their neighboring particles. तो एक तो ये तरीका हो गया कि collision के जरिए हीट ट्रांसफर हो रही है. दूसरा क्या तरीका होता है मेटल में कि जो हॉटर रीजन में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल एंड स्टार्ट्स टू मूव or to flow from hotter region to the colder region. तो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हॉटर रीजन से मूव करके तेजी से कोल्डर रीजन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. सो मेटल्स में थर्मल एनर्जी जो है वो दो तरीके से ट्रांसफर हो रही है. फर्स्ट इज द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड सेकेंड इज द डिफ्यूजन और स्प्रेडिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन. यही वजह है कि हम कहते हैं कि मेटल्स कंडक्ट हीट फास्टर देन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो है उनमें सिर्फ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के जरिए हीट ट्रांसफर होती है, इसीलिए स्लोअर, यानी कह लेंगे जो हीट ट्रांसफर होता है इन नॉन मेटल इज स्लोअर देन द हीट ट्रांसफर इन मेटल्स, बिकॉज इन मेटल्स the heat is transferred by two ways. First is the molecular vibration and second is the diffusion of free electrons. So the rate of heat transfer via conduction. So remember the point that in solids the rate of heat transfer via conduction is higher than liquids and gases, because in solids
the particles are tightly packed because of the stronger forces of attraction between them. And the reason is that molecules in solids are closely packed. That's why the collision, the frequency of the frequent collision with the neighboring particle is higher in cases of solids. That's why the rate of heat transfer via conduction is higher in case of solids. But when we talk about liquids and gases, so there is some sort of space exists between the liquids and gases particles. That's why the frequency of the frequent collision is not as much higher as in solid. That's why the liquid and gases are classified as poor conductors of heat. Now students, we discuss some applications related to conduction. So first we discuss the applications of metals. So हम clearly देखते हैं और हमें ये बात कह लेंगे clearly समझ आती है कि metals जो है they are the good conductors of heat और thermal energy, और metals में heat जो है वो non metals के comparison में बहुत ज़्यादा faster transfer होती है, क्योंकि दो तरीके हैं, first molecular vibration और second आपके पास जो free electron diffuse करते हैं from hotter region to the colder region. यही वजह है कि हमारे जो बर्तन होते हैं, जो हमारे कुकिंग इंटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे खाने बनाने के बर्तन होते हैं, वो हम क्या करते हैं, मेटल्स या एलॉयज के बनाते हैं, मेटल एलॉयज की. उसकी वजह ये है कि मेटल में थर्मल एनर्जी तेजी से ट्रांसफर होती है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज हायर इन मेटल्स. सो क्या होता है, जो आपका खाना है वो जल्दी पक जाता है. लेकिन अगर हम पुअर कंडक्टर्स या कह लें कि हम नॉन मेटल्स की एप्लीकेशन की बात करें, सो नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी होते हैं या हीट होते हैं, और वो हम यूज करते हैं. कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स को यूज करते हैं. या हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में से थर्मल एनर्जी लॉस ना हो, सो हम क्या करते हैं, फिर नॉन मेटल्स को यूज करते हैं. जैसे आपके जो कुकिंग इंटेंसिल्स, खाने के बर्तन या फ्राइंग पैन वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो हम प्लास्टिक या वुड के बनाते हैं. उसकी वजह ये है कि हम नहीं चाहते कि उस जगह तक क्या हो, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो, वरना आपको पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी फ्राइंग पैन या बर्तन वगैरह को. सो हम क्या करते हैं, होल्डिंग के लिए कह लें कि इन केस यानी कह लें कि आसानी के लिए कि आपको बर्तन आसानी से उठाया जा सके, तो हम क्या करते हैं, जो हैंडल्स वगैरह होते हैं बर्तन या फ्राइंग पैन्स वगैरह के, वो हम नॉन मेटल्स के बनाते हैं, बिकॉज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लोअर इन नॉन मेटल्स इन कंपैरिजन विद मेटल्स. मेटल्स के मुकाबले में नॉन मेटल्स में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ही स्लो और बहुत ही लोअर होता है, जबकि मेटल्स जो हैं उनमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फास्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर स्लोअर होता है. इसी वजह से हम क्या करते हैं, खाने के जो बर्तन वगैरह हैं उनके हैंडल्स वगैरह हम नॉन मेटल्स के बनाते हैं, और खाने के बर्तन वगैरह जो हैं वो हम मेटल्स के बनाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ नोट which you all need to remember. The note says that the fiberglass, foam, and the trap pocket of air, these all are examples of poor conductors of. Now we discuss convection. So students, in convection, remember the point that convection only takes place in fluids, and in fluids we consider liquids and gases both. So convection is the transfer of thermal energy with the involvement of actual movement with an actual movement of the medium particles. देखिए, कन्वेक्शन जो है ना, ये वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम पार्टिकल्स मूव करते हैं. क्योंकि कन्वेक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो है कह लें कि हम ये पढ़ते हैं कि कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में होता है, और फ्लूइड्स जो हैं उनमें हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस आती हैं. सो आपने ये बात याद रखनी, एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, एयर जो है इसमें भी कन्वेक्शन होता है. सो आपने ये बात याद रखनी है कि कन्वेक्शन ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट जो होती है मीडियम पार्टिकल्स की, वो इन्वॉल्व होती है. क्योंकि होता क्या है कि जब आप हीट करते हैं ना लिक्विड या गैस को, तो होता क्या है स्टूडेंट्स के एक पार्टिकल्स जो हैं वो कह लें कि पार्टिकल्स के दरमियान में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड या थ्रू आउट द गैस पार्टिकल मूव करना शुरू होते हैं, और आपके पास मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है. सो कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट. अब होता क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपके पास एक एग्जांपल है, ये है कि आपने क्या किया है, बंसन बर्नर पे आपने एक बीकर को रखा है, एंड द बेस ऑफ द बीकर इज इन कांटेक्ट विद द फ्लेम. So the water molecules or the liquid molecules present near the base becomes hot, and when they becomes hot, they also becomes less dense because the density of hot particles is lesser. So the particles gets thermal energy and becomes less dense, and when they become less dense, they starts to rise up. तो आपके पास जो hot particles थे at the base of the beaker वो rise up होना शुरू हो गए. They leave their places, and at the top
colder particles are present, and the colder particles are denser. So the colder particle starts to sink down and takes the place of the leaving hot particles. So colder particle जो हैं वो leaving hot particles की जगह लेना शुरू हो जाते हैं. अब आप खुद देखें कि जो आपके पास hot particle है वो upward move कर रहे हैं और colder particle downward move कर रहे हैं. So there is some kind of an actual movement of the medium particle is involved. So, and this movement of the this actual movement of the medium particle is because of the density difference between the particles. So we can say that there is some convection current created inside the fluids, inside the liquid or gas. So ये जो convection current होता है ये responsible होता है thermal energy को transfer करने के लिए throughout the liquid or gas. So इसीलिए हम कहते हैं कि in convection thermal energy is transferred by convection current, and convection current is created because of the density difference between hot particles and cold particles. The hot particles are less dense, that's why they rise up, and the cold particles are denser, that's why they sink down and takes the place of the leaving hot particles, and this creates a convection current inside the fluids. But the mass and the volume of the fluid always remains constant. The mass remains constant, but the volume expands. So students, this is the process of convection. Now we discuss two applications related to the convection. The first application is of air conditioner. So students, air conditioner को अगर हम देखें तो हमारे लिए जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई एयर कंडीशनर जो है वो रूम ठंडा करता है. अब आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली पेरेंट्स वगैरह हमारे करते क्या है कि जब एयर कंडीशनर ऑन किया है, एसी ऑन किया, तो वो क्या करते हैं, फैन को ऑफ करके और रूम को 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं ताकि अंदर मौजूद कह लें कि जो एसी है वो प्रॉपर वर्क करे और आपके कमरे में एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो जाए जो थर्मोस्टेट में क्या किया हुआ होता है, फीड किया हुआ होता है एसी के. अब एयर कंडीशनर पता है करता क्या है स्टूडेंट्स? एयर कंडीशनर करता ये है कि आपके देखें आपके रूम में जो मौजूद है एयर, वो सारी की सारी जो है एयर कंडीशनर जब ऑन हुआ और आपने फर्ज करें 16 पे कर दिया एयर कंडीशनर का, आपने थर्मोस्टेट में जो टेम्परेचर फीड किया है वो 16 फीड किया है. सो एयर कंडीशनर जो है वो 16 टेम्परेचर यानी कंसीडर कर रहा है और आपका रूम जो है वो 16 से ज्यादा टेम्परेचर पर है. इसका मतलब रूम में मौजूद जो एयर है वो वार्म एयर है, रूम में मौजूद जो एयर है वो हॉटर एयर है. तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपकी जो एयर हॉट है और आपका जो एसी है वो हम हमेशा टॉप पे लगाते हैं. तो एसी करता क्या है कि जो उसके करीब ऊपर जो हॉट एयर मौजूद है, जो वार्म एयर मौजूद है, एसी क्या करता है उस वार्म एयर को सक करता है और सक करके उसको कोल्ड एयर बनाकर वापस रूम में भेजता है. अब आपको पता है द कोल्डर पार्टिकल्स आर डेंसर, सो द कोल्डर पार्टिकल्स व्हिच कम्स इनसाइड द रूम स्टार्ट्स टू सिंक डाउन. कोल्डर पार्टिकल्स भारी होते हैं और रूम में आने के बाद वो क्या करते हैं, सिंक डाउन करना, बैठना, नीचे के कमरे में बैठना शुरू हो जाते हैं कोल्डर पार्टिकल, और पुश करके आपके जो हॉटर पार्टिकल हैं वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं. और फिर एसी क्या करता है, अगेन हॉट पार्टिकल्स को सक करता है और उन्हें दोबारा कोल्ड बनाकर रूम में भेजता है और कोल्डर पार्टिकल सिंक डाउन हो जाते हैं. ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपके रूम में मौजूद एक एक एयर पार्टिकल जो है वो 16 टेम्परेचर पे ना आ जाए जो आपने थर्मोस्टेट में फीड किया है. तो ये प्रोसेस अब आप देखें रूम में हो क्या रहा है कि कोल्ड पार्टिकल्स सिंक डाउन हो रहे हैं एंड द हॉट पार्टिकल्स राइजेस अप. सो देयर इज सम मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इनसाइड टेक्स प्लेस इनसाइड द रूम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ कन्वेक्शन करंट क्रिएट्स इनसाइड द रूम. सो इस तरह क्या हुआ, आपका रूम जो है वो कोल्ड हो जाता है. अब यहां पर कह लें कि जो मसला ये होता है कि अगर आप फैन चला देंगे ना, तो फैन चलाने का नुकसान ये होगा कि आपके जो हॉट और कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे. तो आपका जो रूम ठंडा जो करने का प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगेगा और एसी को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम करके वर्क करना पड़ेगा. सो आप कह लें कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, द सेकंड एप्लीकेशन इज ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल. सो अगर हम हीटिंग एलिमेंट की बात करें, सो इलेक्ट्रिक केटल के बेसिस में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हम नाइक्रोम का बनाते हैं बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम इज वेरी हायर and we just take the advantage of this property. So the heating element is made up of nichrome. So how the process of convection takes place in electric kettle? The water particles at the base of the electric kettle becomes hot after getting an energy from the heating element, and they also becomes less dense and starts to rise up. And the cold particles at the top, which are denser than the hot particles, sinks down and takes the place of the leaving hot particle.
सो अब आप देखें कि जो हॉट पार्टिकल है वो अपवर्ड मूव कर रहा है और जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, बिकॉज द हॉटर पार्टिकल्स आर लेस डेंसर एंड द कोल्डर पार्टिकल्स आर डेंसर। सो आपके पास होता क्या है कि एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो रहा है इनसाइड एन इलेक्ट्रिक केटल। सो इस कन्वेक्शन करंट की वजह से आपका जो कह लें कि थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफर्ड हो रही है थ्रू आउट द लिक्विड। So student, this is how convection currents creates and the thermal energy is transferred through convection. Now the last method or the last mode for the transfer of thermal energy is radiation. So students, in radiation there is no need of the medium because radiation is the ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू वैक्यूम। होता क्या है कि वैक्यूम में जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ आईआर, इंफ्रारेड वेव्स और इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब आप देखते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान में एक लार्ज वैक्यूम और स्पेस मौजूद है जिसने सेपरेट किया हुआ है सन एंड अर्थ को। तो आप ये देखें कि सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, वी विल डिस्कस दिस इन द लेटर टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसकी फॉर्म में और उसमें भी मोस्टली जो आपके पास जो हीट वाला पोर्शन होता है, लाइट के अंदर जो हीट पोर्शन मौजूद होता है वो इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। तो आपके पास सन से इंफ्रारेड रेडिएशंस मूव करती हुई अर्थ तक आती हैं और आप ये देखें, ये क्लियरली कह लें कि एक एविडेंस है कि सन और अर्थ के दरमियान में वैक्यूम होता है और आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो थ्रू वैक्यूम ट्रैवल करके आ रही हैं। और आपकी जो कह लें कि सरफेस पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या सरफेसेस क्या करती हैं, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती हैं और इमिट भी करती हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि जब आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार हो, व्हेन यू हैव अ हाई फीवर, सो आप ये देखते हैं कि यू विल फील कि सम काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड आउट और रेडिएटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी। सो ये वो जो थर्मल एनर्जी रेडिएट आउट हो रही होती है आपकी बॉडी से वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में कह लें कि रेडिएट आउट हो रही होती है। अब स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखना है कि बॉडी जितनी ज्यादा हॉटर होगी उतना ही ज्यादा कह लें कि उसकी अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट या कह लें कि अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी उतनी ही ज्यादा वो इमिट करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, कह लें कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और रेट ऑफ इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन को अफेक्ट करते हैं। सो इसको पढ़ने से पहले आपने एक बात ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो तरह की बॉडीज या सरफेसेस होती है। वन इज द ब्लैक सरफेस और ब्लैक और डल सरफेस और ब्लैक और डल बॉडी, एंड सेकंड इज द व्हाइट और शाइनी सरफेस और व्हाइट और शाइनी बॉडी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ब्लैक और डल सरफेसेस होती है ना स्टूडेंट्स, दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, good absorber and emitter of infrared radiations, while the white or shiny surfaces are bad absorber or emitter of infrared radiation, but they are the good reflector of infrared radiation. White और जो shiny surfaces होती हैं वो infrared radiations को reflect out करती है। यही वजह है कि एग्जामिनर मोस्टली एक सवाल पूछता है पास पेपर्स में जो आपको मिलेगा वो ये कि भाई आप जब घर के बाहर व्हाइट कलर करते हैं, सो व्हाइट पेंट घर के बाहर करना आपको गर्मी में ठंडा यानी कह लें कि हॉट समर सीजन में कूल और विंटर सीजन में आपके घर को गर्म क्यों रखता है। सो देखें, इसका रीजन ये है कि जब आप घर के बाहर व्हाइट वॉश करते हैं तो वी नो दैट द व्हाइट सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और थर्मल एनर्जी। सो होता क्या है कि गर्मियों में, सख्त गर्मियों में जब सन की रेडिएशन आपके घर पे फॉल करती है, सो व्हाइट सरफेसेस क्या करती है, वो सन की रेडिएशन जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसे रूम के अंदर, उसे घर के अंदर इंटर नहीं होने देती, उसे एब्जॉर्ब नहीं करती, बिकॉज व्हाइट सरफेसेस आर द पुअर एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। सो आपके घर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। और अगर हम इसी तरह कह लें विंटर सीजन में की बात करें कि भाई सर्दियों में घर को गर्म कैसे रखता है, सो उसकी वजह यह है कि आपने क्या किया, आपने सर्दियों में घर में हीटर जब ऑन किया, सो जो थर्मल एनर्जी आपके घर में मौजूद थी वो थर्मल एनर्जी जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी घर से, बिकॉज जो व्हाइट कलर मौजूद है घर के बाहर वो क्या करेगा, व्हाइट कलर जो है वो थर्मल एनर्जी को ट्रैप कर देगा इनसाइड द हाउस, बिकॉज द व्हाइट कलर और शाइनी सरफेसेस आर द पुअर एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। सो जो कलर और टेक्सचर है ना सरफेस का, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है रेट ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन पर इंफ्रारेड रेडिएशन के। तो आपने ये याद रखना है कि डल और ब्लैक सरफेसेस आर द बेटर एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर और इमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड द व्हाइट और शाइनी सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर or bad absorber and emitter of infrared radiation. The second factor is surface area. So remember the point that the larger the surface area of the object,
the larger the rate of emission or absorption of infrared radiation, or the body will emit or absorb infrared radiation at the faster rate when the surface area of an object is increased. So there is a direct relation between the surface area of an object and the rate of emission or absorption of infrared radiation. The third factor is surface temperature. The higher the surface temperature, the higher the rate of emission of infrared radiation. So students, याद रखना है, जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उतना ज्यादा बॉडी तेजी से रेट कह लें कि इमिट करेगी इंफ्रारेड रेडिएशन को. सो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का उतना ज्यादा ही रेट ऑफ इमिशन होगा इंफ्रारेड रेडिएशन का, उतना तेज होगा रेट ऑफ इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. तो जो आपके पास कह लें कि सरफेस टेम्परेचर है, द सरफेस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of emission of infrared radiation. Now there are three points which you need to remember. The points are that the radiation does not require any medium for energy transfer, and the radiation can only take place in vacuum, and the energy transfer through radiation involves infrared radiation, or the energy transferred through radiation or through vacuum in the form of infrared waves or infrared radiation. And the कह लें कि a good absorber of infrared radiation is also a good emitter of infrared radiation. यानी वो ऑब्जेक्ट जो जितना ज्यादा तेजी और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन को, वो उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से इमिट भी करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन. Now students, we will discuss an example of vacuum flask to study how the transfer of thermal energy takes place through conduction, convection and radiation in a vacuum flask. So students, the main working of the vacuum flask is to minimize the heat losses or to keep the liquid present inside the flask hot or cold. अगर liquid गर्म होगा तो vacuum flask उसे गर्म रखेगा, अगर liquid cold होगा so it will keep it cold. So चार तरीके से minimize करता है heat loss को vacuum flask: conduction, convection, radiation and evaporation. So आपने ये याद रखना है कि जो हीट लॉस रेडिएशन के जरिए होता है उसे रोकना बहुत हार्डर होता है. क्यों? क्योंकि वो वैक्यूम से हीट लॉस ट्रेवल करता है ना, और वैक्यूम में कोई मीडियम पार्टिकल है नहीं, तो हम कह लें कि कंट्रोल नहीं कर सकते हीट लॉस को बाय रेडिएशन. अब वैक्यूम फ्लास्क में किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, सो आप ये देखें. सबसे पहले कह लें कि जो टॉप होता है वैक्यूम फ्लास्क का, देखिए एक तो आउटर सरफेस है वैक्यूम फ्लास्क की. आउटर सरफेस के बाद वैक्यूम फ्लास्क के अंदर जो है एक वाइट शाइनी सरफेस होती है. उसके बाद कह लें कि एक डबल ग्लास वॉल होती है, और उस डबल ग्लास वॉल के बीच में एयर मौजूद होती है, और फिर टॉप पर स्टॉपर लगा होता है. अब आप देखेंगे जो स्टॉपर है ये प्लास्टिक का स्टॉपर होता है, एंड प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो कन्वेक्शन और इवेपोरेशन जो है वो रुक जाती है. अब हम बात करते हैं कि अच्छा देखें, इसके अलावा जब आपने लिक्विड को फिल कर दिया तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं, कुछ एयर भी जो है ना वो छोड़ते हैं. लिक्विड के ऊपर भी कुछ एयर आपको छोड़नी पड़ती है लिक्विड फिल करने के बाद. सो वो जो एयर ट्रैप की हुई है आपने वैक्यूम फ्लास्क के अंदर, एयर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर. सो एयर क्या करती है, अगेन मिनिमाइज कर देती है हीट लॉस को थ्रू कंडक्शन, बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब आपने ये देखा कि जो डबल ग्लास वॉल है उसके बीच में जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ है वो वैक्यूम के तौर पे एक्ट करता है, और वैक्यूम जो है वो अगेन कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट लॉस को रोक देता है. फिर हम बात करते हैं कि इनसाइड जो आपके पास सिल्वर कोटिंग होती है, आपको पता है सिल्वर सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर और बैड इमीटर और एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. सो आपके पास सिल्वर कोटिंग की वजह से रेडिएशन के जरिए कह लें कि जो एनर्जी लॉस है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है. क्योंकि हॉट लिक्विड से जो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में थर्मल एनर्जी निकलती है वो शाइनी वॉल्स पे रिफ्लेक्ट करके इनसाइड द फ्लास्क ही ट्रैप रहती है. फिर हम बात करते हैं कि बॉटम में हमने फोम लगाया हुआ होता है. जो फोम होता है स्टूडेंट, फोम इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी. सो वो अगेन क्या करता है, एयर को ट्रैप करता है, और फॉर्म जो है वो थर्मल एनर्जी को मूव फ्लो नहीं करने देता वैक्यूम फ्लास्क से बाहर. अब जो वैक्यूम फ्लास्क की आउटर केसिंग है वो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बनाते हैं. सही है स्टूडेंट्स. तो ये तरीका है, यानी कह लें कि दिस इज हाउ अ वैक्यूम फ्लास्क मिनिमाइजेस द हीट लॉस थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो ये तरीके आपने याद रखने. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर, एंड today we covered our topic transfer of thermal energy, and inshallah in the next session we will discuss our last topic, which is
thermal properties of matter. So thank you once again for attending my lecture. Kindly subscribe to my channel, like and share my video so that the other students can also get help from these videos. Thank you once again. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.